Venn diagram. These diagrams consist of rectangles and closed curved, usually circles. The universal set is represented usually by a rectangle and its subsets by circles. In Venn diagram, the elements of the sets are written in their respective circles. देखिए वेन डायग्राम एक डायग्राम है जिसके अंदर हम यूनिवर्सल सेट को तो रेक्टेंगल में प्रदर्शित करते हैं और उसके अंदर जो बाकी सेट्स होते हैं उन्हें प्रदर्शित किया जाता है। जैसे यदि हमारा कोई यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर उसमें 10 तक एलिमेंट सारे नंबर्स जो हैं सारे नेचुरल नंबर्स उसके एलिमेंट्स हैं, और एक दूसरा सेट है A जिसमें एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, सारे के सारे जितने भी हमारे इवन नंबर्स हैं अप टू 10 यहाँ पर दिए गए हैं। तब हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे यूनिवर्सल सेट कंसिस्ट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अप टू 10 and here this set will be represented by a circle which will consist of the element 2, 4, 6, 8 and 10. That is the proper way. आइए अब देखते हैं यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है। यूनियन ऑफ सेट्स, union of sets, let A and B be any two sets. कोई दो सेट्स हैं हमारे पास A and B, तब union of sets A and B is the set which consists of all the element of A and all elements of B. A के भी सारे एलिमेंट्स उसमें होंगे यूनियन ऑफ सेट में और B सेट के भी सारे एलिमेंट्स वहाँ पर होंगे। द कॉमन एलिमेंट बी टेकन ओनली वंस, जो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट हैं वो केवल एक बार लिए जाएंगे और इसे हम सिंबल U से डिनोट करते हैं। ऐसे हम लिखेंगे A यूनियन B। ओके, इन सिंबल्स वी राइट A यूनियन B इज इक्वल टू X such that X belongs to A और X belongs to B। या तो X A को बिलोंग करेगा या X सेट B को बिलोंग करता होगा, तब हम उसे A यूनियन B से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ यूनियन। आइए, A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, इट इज कम्यूटेटिव लॉ। सेकेंड वन, ब्रैकेट इन द ब्रैकेट A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन इन द ब्रैकेट B यूनियन C, दैट इज एसोसिएटिव लॉ। यदि हम A यूनियन फाई करते हैं तब A ही आएगा। ये किस लॉ से है? लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। फोर्थ, A union A will be A. This is idempotent law. Next is U union A, universal set union A is equal to universal set. That is law of union. Here we can represent union in this way. Here is the universal set. This is set A and this is set B. Then all this area will be taken as A union B. Come on, now come to the next point, that is intersection of sets. See, the intersection of sets A and B is the set of all elements which are common to both A and B, and symbol here we use this symbol. Okay, or the intersection of two sets A and B is the set of all those elements which belong to both A and B. Symbolically we can write A intersection B is equal to X such that X belongs to A and X belongs to B also.
Now let us see the properties of operation of intersection. A intersection B is equal to B intersection C, that is commutative law. A in the bracket A intersection B bracket close intersection C is equal to A intersection bracket start B intersection C bracket close. This is associative law. Phi intersection A is equal to phi. This is, and next one is universal set intersection A is equal to A. The law of phi and U. A intersection A is equal to A. This is idempotent law. A intersection in the bracket B union C is equal to, in the bracket start A intersection B bracket close union bracket start A intersection C bracket close distributive law. This is, here we can say that intersection distributes over union. Next, let us see through some examples. See here, my dear students, see here, B यूनियन C हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे देखिए, B और C उसके सारे एलिमेंट्स यहाँ पर लिए जाएंगे, तब ये B यूनियन C होगा. इसके बाद A इंटरसेक्शन B को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, A और B के जो भी सेट्स कॉमन है वह एरिया, जो भी एरिया कॉमन है वो यहाँ पर लिया जाएगा. दिस इज A इंटरसेक्शन B. इसके बाद देखते हैं A इंटरसेक्शन B यूनियन C. तो चलिए पहले B यूनियन C को देखते हैं. B यूनियन C, ये पूरा एरिया, ये दोनों जो सर्कल्स हैं हमारे इसमें आएंगे, और इसका जब हम इंटरसेक्शन निकालते हैं A के साथ, तो B और C में कॉमन एरिया जो हमारा B यूनियन C का था, वो ये जितना भी A के साथ क्रॉस करता है वह ये है, जो कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C कहलाएगा. राइट. इसके बाद अब हम देखते हैं ये A इंटरसेक्शन C क्या होगा, बताइए. A, दिस इज C, दिस इज द कॉमन एरिया, सो दिस विल बी कॉल्ड A इंटरसेक्शन C. चलिए एक और देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल लास्ट. A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C. A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B यह एरिया होगा, और A इंटरसेक्शन C ये वाला एरिया होगा. तो इन दोनों को जब हम यूनियन करेंगे तो दोनों का कंबाइन, दिस एरिया इज A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C का यूनियन है ये. नाउ अब हम देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स. Difference of sets A and B in this order is the set of elements which belongs to A but not to B. सिंबॉलिकली ये हम लिख सकते हैं A माइनस B, और हम माइनस का साइन से इसे रिप्रेजेंट करेंगे सीधे. आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझते हैं. एग्जाम्पल्स. A यदि हमारा एक सेट है 1 to 6, सारे के सारे इसमें हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, और B हमारा जो एक सेट है उसमें सारे इवन नंबर्स हैं 2 to 8. तब A माइनस B क्या होगा, A में से जब हम B सेट के एलिमेंट सारे निकाल देते हैं, तब कौन से एलिमेंट बचते हैं, 1, 3 और 5. ये हमारा A माइनस B होगा. और ठीक इसी तरह से हम देखते हैं, जब B में से A के सारे एलिमेंट जितने भी वहाँ कॉमन एलिमेंट है वो निकाल देते हैं, तब जो बचता है उसे B माइनस A कहते हैं. दैट क्लियर. तो इसे हम रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं. देखिए, दिस इज A, दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज B. A माइनस B हमारा क्या होगा, A में से
बी के एलिमेंट जो कॉमन एलिमेंट है वो निकाल देते हैं, तो अब हमारा जो एरिया बचेगा वह हमारा होगा ए माइनस बी. दिस इज ए माइनस बी इन दिस वे. सी माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज. आइए चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 का. लेट अस मूव फास्ट डियर स्टूडेंट्स. फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट्स. जबकि x है 1 3 5, y है 1 2 3 एलिमेंट्स का सेट और x यूनियन y होगा. दोनों के सारे एलिमेंट्स आप मिला के लिख दीजिए 1 2 3 5. ये आपका x यूनियन y हो जाएगा. नेक्स्ट आप ये थर्ड नंबर देख लीजिए. a है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3. कौन सा सेट होगा? नेचुरल नंबर होगा विद यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 होंगे. तो 3 6 9 ये सारे डैश 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 इनफाइनाइट तक आगे ये सारे के सारे सेट, ये सारे एलिमेंट्स ए का पार्ट होंगे. ऐसे ही हम भी देखते हैं x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6. तब यहाँ पर हमारा जो बी सेट बनता है 1 to 6 सारे नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे. तब ए यूनियन बी बताओ बच्चों क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 और ये 9. यू आर राइट. 6 तक तो सारे एलिमेंट्स होंगे बी के और उसके बाद में एक एलिमेंट यहाँ पे सिर्फ आपको एक्स्ट्रा दिखाई. अरे भाई यहाँ पे यूनियन कर रहे हैं हम और ये इनफाइनाइट तक जा रहा था चूँकि, तब ये सेट भी इनफाइनाइट तक जाएगा. इसमें सारे एलिमेंट आगे तक होंगे. ऐसे आप समझ सकते हैं. राइट. राइटिंग मिस्टेक. तो ये सारे एलिमेंट 9 से लेके और 12 और 15 आप ऐसे समझ सकते हैं. दैट इज क्लियर. अब आप आगे चलिए. लेट अब ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा. ए सेट ए इज इक्वल टू एलिमेंट्स हैं ए और बी. इसमें बी सेट है जिसमें ए बी सी एलिमेंट्स हैं. तब वो पूछता है क्या ए सबसेट होगा बी का और क्या ए यूनियन बी क्या होगा बताइए. यस, हम यहाँ देख रहे हैं ए के सारे एलिमेंट्स बी में मिलते हैं इसलिए ए सबसेट है बी का. और ए यूनियन बी क्या है? ए यूनियन बी है ए बी सी, यानी कि ये तो ए बी सी. ए यूनियन बी क्या है? ए यूनियन बी इज ए बी सी, दैट इज बी. ओके डियर स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 3 वो पूछता है क्या इसी तरह से सारे सेट्स पे बात लागू होगी? यस, ये बात सभी पे लागू होगी. यदि ए सबसेट है बी का तब ए यूनियन बी हमेशा सेट बी होगा और ए इंटरसेक्शन बी हमेशा ए होगा. ए यूनियन बी हमेशा सेट ए होगा यदि ए बी का सबसेट है. ठीक है, समझ गए आप? नेक्स्ट अब आप आगे देखिए. क्वेश्चन नंबर 4. सेट ए बी और सी और डी दिए हुए हैं हमें, जिसमें हमें फर्स्ट पार्ट में निकालना है ए यूनियन बी. तो ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं. ये हमारा ए यूनियन बी होगा. और उसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखते हैं. यहीं पे इसका पांचवा पार्ट ए यूनियन बी यूनियन सी. तो ए यूनियन बी में हम सी के सेट्स भी जोड़ देंगे. तब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाता है बच्चों. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 4. इसमें इंटरसेक्शन बताना है इसी क्वेश्चन के लिए. अब ए इंटरसेक्शन बी आप देखिए यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं वो 3 और 4 हैं. इसी तरह से यहाँ हमने फिफ्थ क्वेश्चन किया था तो फिफ्थ क्वेश्चन को हम दोबारा से देखते हैं. ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. तो ए इंटरसेक्शन बी आप पहले निकाल लीजिए. ए और बी में जो ये कॉमन एलिमेंट हैं वो हैं 3 और 4. और इसी तरह से जब हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालने चलते हैं तो चूँकि ये जो 3 और 4 हैं ये सी में नहीं हैं इसीलिए यहाँ पर हमें मिलेगा नल सेट यानी 5. दैट्स द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए 6th क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं. 6th क्वेश्चन देखिए. इट इज़ सो इजी.
सेट ए दिया हुआ है 3, 5, 7, 9, 11 और बी और सी और डी इसी तरह से 3 सेट दिए हुए हैं। अब वो पूछता है ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो कॉमन एलिमेंट यहाँ पर 2 ही दिखाई पड़ते हैं हमें, 7 और 9, यही हमारा आंसर होगा। इसी तरह से 10th क्वेश्चन वो पूछता है कि ए यूनियन डी और बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन क्या होगा। तो पहले आप ए यूनियन डी निकालेंगे बच्चों। ए यूनियन डी, तो सारे एलिमेंट्स जो कॉमन हैं, सॉरी जो सारे एलिमेंट्स इनके जो टोटल हैं 3, 5, 7, 9 और 15, 17 यहाँ पे आ जाएगा। और ऐसे ही पहले बी यूनियन सी निकाल लेंगे। बी और सी के जो एलिमेंट्स हैं सारे वो मिला लीजिए, 7, 9, 11, 13, 15। और यहाँ पर आप देखते हैं ये 11 और 15 कॉमन एलिमेंट है, तो इंटरसेक्शन यही होगा। इंटरसेक्टिंग पार्ट इनका 11 और 15 एलिमेंट्स ही ये सेट होगा। 7th आप खुद करेंगे क्योंकि बिल्कुल इसी तरह से है एग्जैक्टली। 8th क्वेश्चन अब आप देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। हमें सेट दिया हुआ है a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, b दिया हुआ है x as that x is a natural number and x is greater than equal to 4 less than equal to 6। b इज इक्वल टू हमारा आ जाता है 4 से लेके 6 तक सारे एलिमेंट्स जो नेचुरल नंबर होंगे 4, 5, 6। तो डेफिनेटली एक एलिमेंट यहाँ पर कॉमन है, और जहाँ पर भी कोई एक एलिमेंट या एक से ज़्यादा एलिमेंट कॉमन होते हैं तब दोनों सेट ज्वाइंट सेट कहलाते हैं, यही परिभाषा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 9th क्वेश्चन पे आइए। अब 9th क्वेश्चन हमारा है, देखिए 9th क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 3, 6, 9, 15 ये सेट दिया हुआ है, b दिया हुआ है, दूसरा तीसरा c और d 4 सेट्स हमें दिए हुए हैं। सॉल्यूशन पूछता है क्या है क्वेश्चन कि फाइंड कीजिए a माइनस बी क्या होगा। तो a में जो एलिमेंट हैं उसमें से आप b के एलिमेंट्स वहाँ पर हटा लीजिए, तब हमारा जो सेट बचेगा वही a माइनस बी होगा। यहाँ पर बचता है 3, 6, 9, 15, 18 और 21। दैट इज योर आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ 10th क्वेश्चन देखिए। d माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा। अब d में से b आप हटा लीजिए, d में से b के जो एलिमेंट्स हैं वो हटा लीजिए, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वहाँ पर वो हटा लीजिए। तो यहाँ पर 5, 10, 15, 20 और यहाँ पर है 4, 8। d में से b हटा लीजिए, 5, 10, 15, 20 और यहाँ पर एक ही एलिमेंट जो कि कॉमन है उसे ही आप हटा दीजिए, तो आपका आ गया 5, 10, 15। 10th क्वेश्चन डू इट योर सेल्फ, सिमिलर है। 11 r इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, q इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। तो बताइए r माइनस क्यू क्या होगा। तो बेटा रेशनल नहीं है तो इरेशनल जरूर होगा। तो ये आ गया आपका आंसर सेट ऑफ ये आपका r माइनस क्यू जो होगा वो सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स यहाँ पर होगा। 12th क्वेश्चन आपने सम करना है। विश यू ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।